Let's welcome sir and start our session. Thank you so much, Bharati. It's not working. Okay. So, once again, welcome to the session for the committee which is called the National Biodiversity Authority. Can you get me the act which is there inside this? Or open it in something else? Children, this committee is perhaps a little technical, so we expect the most intelligent kids to have joined into this committee, and I am sure I am not going to be wrong in my assessment, because this involves the most intricate, the most complex form of conservation of nature. I will give you a brief history of how this came into existence. You see, what is biodiversity? Biodiversity is every living creature which has life is biodiversity. Everything. It includes you, it includes the animals, the fauna, it includes the flora, it includes the algae, which is also a life form. It includes viruses, not viruses per se, because that's a debatable issue, whether virus is a living form or not. But it includes almost everything that has life is part of biodiversity. तो क्यों बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया? The act comes into existence somewhere in 2002 and formal acceptance in 2003. The Biodiversity Act was brought because there was some shortfall which was being felt. कोई कमी महसूस हो रही थी पर्यावरण संरक्षण के कानून में, जिसको पूरा करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया. और बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बैकग्राउंड को आपको समझना बहुत जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे कि इस एक्ट के मायने क्या हैं और क्यों सारे एनेक्टमेंट्स में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट का है. और अगर आप आगे करियर्स परस्यू करना चाह रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सब के दृष्टिकोण से बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए. जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, आज की ही बातचीत जब जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा. So the 2002 Act is perhaps the latest addition to the conservation law history in India. The conservation law history essentially starts with the 1927 Indian Forest Act. I'll just request you to note down these things कि ये कहाँ से ये पूरा आया. If you see the second slide, you have the Indian Forest Act 1927. ये इस पर बहुत डिबेट है कि ये कंजर्वेशन लॉ था कि नहीं, लेकिन हाँ एक फैक्टर तो जरूर था. इस एक्ट के आने के पहले भी एक दो फॉरेस्ट एक्ट्स थे, लेकिन इस एक्ट के आने के पहले फॉरेस्ट जो था वो कॉमनवेल्थ था, सबकी वेल्थ थी. सब लोग जो चाहे उसमें से जाके निकाल ले, जिसकी लकड़ी काटने की इच्छा है वो लकड़ी काट ले. उस समय जंगल थे भी बहुत. 1927 की बात कर रहे हैं हम लोग, आज से 99 साल पहले, 99 years ago. The government felt that if we just let it be like this, then very soon people will commercially exploit the forest and take away all the forest wealth. So they brought into force the Indian Forest Act 1927, and the act gave ownership of all forests to the government. यानी अब किसी का प्राइवेट फॉरेस्ट नहीं रहेगा, सारा जंगल जो है वो सरकार का रहेगा. उसमें अगर आपको जाना है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, लकड़ी निकालनी है, पत्ता निकालना है, बीज निकालना है, फल फूल निकालना है, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन की आवश्यकता पड़ती थी. तो उसके लिए परमिट्स इशू होते थे. इनफैक्ट उस समय फॉरेस्ट एक्ट के ही अंदर हम वाइल्ड लाइफ को भी कवर करते थे, क्योंकि हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए कोई अलग से लॉ नहीं बना था. तो उस समय गेमिंग लाइसेंसेस हुआ करते थे. You've heard the word gaming? You've heard the word game, certainly. Have you heard the word game with reference to forest ever? Anybody? Yes, sir. It means
prey, hunting animals. Animals Precisely. which are hunted. Precisely. The word gaming in reference to forest means hunting of wild animals. So it used to be considered a sport then, कि जो राजा महाराजा और अंग्रेज और ये सब होते थे सक्षम लोग, ये जंगलों में जाकर एज अ स्पोर्टिंग एक्टिविटी शिकार किया करते थे, और वो भी अंधाधुंध शिकार ना हो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो गेमिंग लाइसेंस जारी करती थी. उसके अंदर परमिट होता था, आप इतना ही जानवर मार सकते हैं, फीमेल को नहीं मारा जाएगा, मेल्स को ही हमेशा वैसे भी मारा जाता है, तो मेल्स को ही शिकार बनाया जाएगा और फीमेल्स और फॉन्स और बच्चों को आप शूट नहीं कर सकते. सो अडल्ट मेल्स वर द ओनली स्पीशीज विद अ बीट, एंड टाइगर्स वगैरह की जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव गेमिंग एक्टिविटीज में परमिशन होती थी. 1927 एक्ट वहां से चला, बहुत साल रहा, उसके बाद भी शिकार होता गया. एक समय ऐसा आया 1970 के आसपास, when the government felt that now if we do not stop the killing of animals, we might lose all the animals very, very quickly. Tigers were in a very precarious situation, and tigers को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया, और उसके पहले कानून में एक बड़ा फेरबदल करते हुए एक नया एक्ट आया जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हंटिंग ऑफ एनिमल्स को नॉट ओनली इलीगल किया बल्कि क्रिमिनलाइज कर दिया, विच मीन्स कि अगर आप शिकार करते पाए गए तो आपको सजा होगी, आप जेल जा सकते हैं, आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी. ठीक है. टाइगर को बचाना क्यों जरूरी था, वैसे कोई बताएगा क्या? क्यों टाइगर को बचाना जरूरी है? अरे हम तो सोचे बड़े ज्ञानी लोग. हाँ बताइए. Considered as the national animal of our country. बहुत अच्छी बात है, नेशनल एनिमल, पर ये सही आंसर नहीं है. ये कारण है, लेकिन ये वो कारण नहीं है जिसके कारण आप टाइगर को बचा रहे हैं. ठीक है. और एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? व्हाई सेव द टाइगर? प्लीज रवलीन. Sir, because it maintains the ecological balance of the forests. Absolutely, absolutely. It maintains the ecological balance. But perhaps, Tavleen, you are 99% correct. To be 100% correct, I'll give you what the right answer is. When you are saving the tiger would survive in a particular habitat, right? The tiger is dependent upon deer. The deer is dependent upon grass. The grass is dependent upon the propagative insects which are producing the grass. So the whole ecosystem is focused on the apex species, which is called the tiger, and that is why you call the tiger as the keystone species or the flagship species कहते हैं उसको. यानी अगर आप टाइगर को बचा रहे हैं तो आपके टाइगर के बचाने के साथ साथ पूरे जंगल का इकोसिस्टम बच रहा है, इसलिए आप टाइगर को बचाते हैं. ठीक है. क्योंकि आप टाइगर को बचाएंगे तो टाइगर अपार्टमेंट में नहीं रहेगा शहर में. टाइगर जहां रह रहा है उसके आवास, उसके परिवेश, उसके खान पान का सबका संरक्षण आप जब करेंगे तब टाइगर बचेगा, इसलिए टाइगर को आप बचाएंगे. ठीक है. सो देयरफॉर दिस एक्ट वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन 1972 and another project was launched, major project by the government of India, which was called the Project Tiger. Project Tiger के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेवी फंडिंग शुरू की, और वो फंडिंग प्राप्त होते होते काफी टाइगर के संरक्षण में काम होना शुरू हुआ. कान्हा नेशनल पार्क को कान्हा टाइगर रिजर्व कर दिया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व. इन सब के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स चेंज हो गए. काम चलता रहा, संरक्षण मिल गया वन्य जीवों को. फिर ये लगा कि वन की जमीन भी बहुत ज्यादा लुटपिट रही है, जंगल में लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमको बचाना है सब कुछ तो जंगल में एनक्रोचमेंट और जंगल की भूमि को बचाना जरूरी है. तो 1980 में आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ने ये कहा कि यदि जंगल की जमीन को, यदि आप जो लैंड रिकॉर्डेड है एज फॉरेस्ट, उस पर कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी. उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायर अप्रूवल लगेगी. भले ही आप माइनिंग, रेलवे लाइन, हाईवे, कोई भी प्रोजेक्ट ला रहे हैं,
आपको फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है तो आपको परमिशन लगेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म आया जिससे फ्री डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को प्रोहिबिट कर दिया गया, क्रिमिनलाइज भी कर दिया गया, अगर गड़बड़ करोगे जेल जाओगे, ठीक है। इसके बाद भी हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि इन सब से काम नहीं चलेगा। हो सकता है हम कहीं कोई बड़ी चूक कर रहे हैं क्योंकि हमारे जंगल, हमारी वन संपदा बच नहीं रही है। और 1990 के दशक में, 1990s में, just note this down and I want you to research on this. India signed a major agreement called General Agreement on Tariff and Trade, GATT, G-A-T-T. Right? GATT जब साइन हुआ तब मल्टीनेशनल कंपनीज बड़ी संख्या में भारत में निवेश करने के लिए आना शुरू हुई और हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। उसके पहले हम रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी थे, फिर हम एक ओपन इकोनॉमी हो गए। जैसे ही हम ओपन इकोनॉमी हुए वैसे ही बड़ी मात्रा में हमारी वन संपदा का अर्थ समझते हैं? बताइए, कोई प्रयास करेगा तो। वन संपदा का अर्थ क्या होता है? गो अहेड प्लीज। सब अंग्रेज हैं यहां पर, मैं ही एक भारतीय बैठा हुआ हूं। प्रयास तो करो सर। फॉरेस्ट रिसोर्सेज। बहुत अच्छे, बिल्कुल एग्जैक्टली। वन संपदा यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में लकड़ी से लेकर फल फूल जड़ सब कुछ आ जाता है। वहां उगने वाला मशरूम, वहां मिलने वाला हनी, पेड़ों की गोंद, मालूम है ना, गोंद निकलती है पेड़ से, एडिबल होती है। किसी एक पेड़ की गोंद से लड्डू बनते हैं। किस पेड़ की गोंद से लड्डू बनते हैं? उस पेड़ का नाम है इंडियन गोस्ट ट्री। जस्ट नोट डाउन, इंडियन गोस्ट ट्री, भूत वाला गोस्ट, वही वाला। हिंदी में उसको लोकल भाषा में कहते हैं कुलू, KULU, कुलू। कुलू की गोंद से, कुलू एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आदिवासी लोग काफी निकाल के बेचते हैं और प्योर उसकी जो गम है वो बहुत हाईली मेडिसिनल होती है। Especially when a young child is born, the mother is given those laddus which are made of kulu gum. Now you can recollect, right? Now you can that laddu comes from kulu. So all these forest resources were required to be preserved, क्योंकि इसके पहले तो लोकल लोग ही यूज करते थे, लेकिन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जब हमने साइन किया और इकोनॉमी ओपन की तो फॉरेन कंपनीज बड़ी मात्रा में आ गई और उन्होंने हमारे रिसोर्सेज का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। तो हमने 1992 में रियो डी जेनेरो में एक कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करके इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को साइन किया। उसी समय की बात है जब हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड साइन किए ही थे। इसमें हमने संकल्प लिया अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और उसके लिए डेडिकेटेड इनैक्टमेंट बनाएंगे भारत में, जो कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण देगा। और बनाते बनाते 10 साल लग गए। भारत में इससे कम तो कुछ लगता ही नहीं है। और पर्यावरण संरक्षण में तो खुद ज्यादा ही अपन आराम से चलते हैं। उदाहरण के तौर पर 1976 में हमने वॉशिंगटन कन्वेंशन में कमिट किया था और रैमसर में कमिट किया था 1976 में कि हम अपने वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे। उसके पहले रूल 2012 में बने। 76 से बना रहे थे अपन कानून बैठ के, बनते बनते 2012 में बना वो, ठीक है। आप देखेंगे कि बहुत कमिटमेंट स्ट्रांग कभी नहीं रहता है जब संरक्षण की बात आती है, क्योंकि कई लोग रहते हैं और अधिकारियों में एक प्रवृत्ति रहती है, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस रहा है कि फॉरेस्ट को बहुत नेगेटिव उससे देखते हैं कि ये जो फॉरेस्ट के संरक्षण की बात करते हैं ये लोग हमेशा हर चीज में अड़ंगा डालते हैं। अरे रोड मत बनाओ ये नुकसान हो जाएगा, हाईवे मत बनाओ ये नुकसान हो जाएगा,
बनाओ तो ऐसी बनाओ, तो वो लोग हमेशा, उनको अड़ंगेबाज लोग माना जाता है जो संरक्षण की बात करते हैं। तो जो कानून भी बनाते हैं बेचारे, जो उनको भी रोक दिया जाता है, अरे छोड़ो ये सब फालतू काम, तुम कुछ ज्यादा जरूरी काम करो। ऐसा करते करते 10-12 साल, तो 10 साल लग गए बायोडायवर्सिटी एक्ट बनाने में। अब ये एक्ट क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये हमारे पूरे परिदृश्य को बदल देता है, जिस तरीके से आज तक हम संरक्षण करते आए, और हमारी अप्रोच को डायमेट्रिकली एकदम चेंज करता है। हम बताते हैं आपको कैसे चेंज करता है। अगर आप ये स्क्रीन अभी फिलहाल न देखें तो मैं बताता हूं कि क्या है बायोडायवर्सिटी एक्ट का असली मायने। You see, we as a civilization, if we leave aside the Vedas and the Upanishads, which were very well documented, which documented our knowledge, which recorded everything, if we leave aside that, we are a country which is very poor in documentation. Now I'll explain you this to you with an example. हमारे जो आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो उनको दवाइयाँ मालूम हैं जंगलों में, ये सब, या हमारी दादी जो हमको, कभी आप लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि पेट में दर्द हो रहा है तो ये हींग खा लो छोटी सी, कान में दर्द हो रहा है तो ये फलाना तेल डल जाएगा, दांत में दर्द है तो एक लौंग रख लो दांत के नीचे। ऐसा होता है ना घरों में। ये सब कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ वनस्पति वन्य संपदा मिलती है जंगलों में, इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत पुअर है। इसके मुकाबले अगर आप अंग्रेजों को देखेंगे, अंग्रेजों का डॉक्यूमेंटेशन बहुत तगड़ा था। वो भारत आए, उन्होंने एक पूरी टीम को लगा दिया, नक्शा बनाओ पूरे भारत का, कॉन्टूर्स बनाओ, सर्वे मैप्स बनाओ, डेटा इकट्ठा करो। किया ना ऐसा? आज आप जितने सर्वे मैप्स देख रहे हैं जिसमें कॉन्टूरिंग ऑफ लैंड है, कहाँ कितना एलिवेशन है, आप जाएंगे जहां पुरानी जगहों पर जाएंगे आपको पत्थर लगे मिलेंगे। आप कलेक्ट्रेट के सामने हाईकोर्ट चौराहे पर अगर जाएंगे तो वहां एक पत्थर लिखा लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये स्थान ऐसा, इसका लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड इतना है, इसका मीन सी लेवल से एलिवेशन इतना है। वो लोग सब कुछ डॉक्यूमेंट करते थे, सब कुछ रिकॉर्ड रखते थे, यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत वो डॉक्यूमेंटेशन करते थे। अब वो सिस्टम हमारे यहाँ बंद हो गया है। पहले एक रेड बुक हुआ करती थी। रेड बुक का मतलब होता था, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है ना, जिले का तो सबसे बड़ा अधिकारी वही रहता है, कलेक्टर। तो कलेक्टर के ऑफिस में एक रेड बुक मेंटेन होती थी। उस रेड बुक में लिखा रहता था कि इस शहर में सबसे बड़े सेठ लोग, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है, कौन कौन सी पुरानी फैमिलीज हैं इस शहर में, कौन उधम करता है सबसे ज्यादा, त्योहारों में कौन उत्पात करता है, कौन गुंडा फसादी है, वो सारे नाम। समस्या है तो आप किससे बात कर सकते हो, कौन लोग इन्फ्लुएंशियल हैं जो कम्युनिटीज को, किस किस कम्युनिटी को ज्यादा कर सकते हैं, हवा किस दिशा से चलती है, तापमान कितना रहता है, कितनी वर्षा होती है, किस पीरियड में, सब लिखा रहता था। जब नया कलेक्टर पोस्ट होने जाता रहता था तो उसके 15 दिन पहले उसके ट्रांसफर के वो रेड बुक उसके पास भेजी जाती थी कि भाई आप जबलपुर आ रहे हैं, जबलपुर के बारे में बेसिक जानकारी ये आपके पास है, आप जब अपने 2-3 साल के टेन्योर में रहेंगे, अगर इसमें कोई परिवर्तन देखते हैं तो आप इसमें रिकॉर्ड करिएगा, राइट। So they were very good in documenting. In their administrative processes also they were very good in documenting. In comparison, we were very poor. Now the Biodiversity Act, for the first time ever in India's recorded history after the Vedas and the Upanishads, tried to document its biodiversity. And therefore, the Biodiversity Act has a provision called the People's Biodiversity Register. Please note down, People's Biodiversity Register, which you have to research upon. PBR, we will refer to as the PBR. तो PBR बनाने का पहला मैंडेट पहली बार आया बायोडायवर्सिटी एक्ट ने, और उसने ये नहीं कहा कि सरकारी अधिकारी आएगा, तहसीलदार, पटवारी आएगा और वो बायोडायवर्सिटी को कैटलॉग करेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, वो क्या लिख के चला जाएगा भगवान ही जाने।
इसीलिए ये प्रोविजन बना कि 3 टियर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट करेंगे हम। कैसे करेंगे? नेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी रहेगी जिसका नाम रहेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो आप हैं, है ना, इस कमेटी में यू आर द एनडीए, द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। हर राज्य में एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रहेगी, हर स्टेट में, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी रहेगी जिसको हम बीएमसी कहेंगे। वो बीएमसी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए। अब उसमें कौन लिखेगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो ये मैं स्लाइड वाइड तो सब छोड़ छाड़ के इधर उधर भाग गया हूँ, सॉरी। हाँ, एनीवेज, तो पीपल्स तो सबसे ज्यादा कैटलॉगिंग पर फोकस हुआ। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं रहेगा तो हमारे हाथ से क्या निकल गया हमको मालूम ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? आपको आश्चर्य होगा जानकर, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वो है पन्ना, पचमढ़ी और अमरकंटक। ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व वो होता है जहां पर मल्टीपल इकोसिस्टम्स एक साथ सरवाइव करते हैं, मल्टीपल बायोम्स एक साथ सरवाइव करती हैं। पढ़िएगा इनको क्या होते हैं, बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। एक घास के मैदान में जहां कोने में पानी भरा हो वहां न्यूनतम 2 इकोसिस्टम हैं, एक एक्वाटिक जो पानी में सरवाइव कर रहा है और एक ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है। 10 पेड़ लगे हो एक किनारे तो 3 इकोसिस्टम्स हैं उसमें। 10-20 श्रब्स लगी हुई हैं तो 4 इकोसिस्टम्स हैं, क्योंकि श्रब का इकोसिस्टम अलग है, ट्रीज का इकोसिस्टम अलग है, घास का इकोसिस्टम अलग है, पानी का इकोसिस्टम अलग है। सब में अलग अलग स्पीशीज और उन स्पीशीज की अलग अलग पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है ना। ऐसे मल्टीपल इकोसिस्टम्स जब एक साथ रहते हैं तो हम उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं, क्योंकि उसकी बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना हमारे लिए आवश्यक है। तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में अमरकंटक से खास तौर पर बायोडाइवर्सिटी पिल्फरेज होता था, जिसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। बायोपायरेसी मतलब 2 तरीके की होती है, और दूसरी तरीके की हम बताते हैं वो ज्यादा खतरनाक होती है। एक तो आपके यहां से सारा बायोलॉजिकल रिसोर्स निकल के कमर्शियली एक्सप्लॉइट होके चला जा रहा है, आपको मालूम ही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें से कुछ प्याज जैसी दिखने वाली चीज है जिसको वन प्याज कहते हैं। अगर आप कब अगली बार अमरकंटक जाएंगे तो आसपास घूमिएगा और पचमढ़ी जाएंगे तो पूछिएगा वन प्याज किसको कहते हैं। एक बहुत एक्सट्रीमली मेडिसिनल फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वन प्याज, और उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका एक उदाहरण हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। पहले अरण्योत्सव नाम का एक मेला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता था, अरण्योत्सव। उसमें गांव-गांव से अलग अलग जगहों से लोग आया करते थे और जंगलों से ला के वन संपदा का प्रदर्शन करते थे। आप उसमें से कुछ थोड़ा बहुत खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते थे। जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में लगा करता था। तो वो एक वन प्याज लेके काली रंग की एक आदिवासी था, बैगा था, डिंडोरी का, वो लेकर आया हुआ था। तो उसने वन प्याज दिखाई तो हम लोगों ने देखा कि ये क्या है भाई। तो उसने बोला साहब इसमें जो है वो इतनी हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसकी आप उसने मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो क्या बोलेगा बेचारा, लेकिन उसने कहा कि ऐसी औषधि है जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमने कहा हम कल्पना करना चाहेंगे, अगर आप कल्पना करवाएंगे तो देखना चाहेंगे क्या है। तो उसने एक लोहे की पिन लेकर उसमें गाड़ दी प्याज में, सेफ्टी अल्पिन, और उसने बोला अब आप घूम फिर के आइए मेले में जब तक आपकी इच्छा है। तो आधे पौन घंटे घूम फिर के आए, वापस वहां आए तो उसने बोला अभी टाइम नहीं हुआ साहब, आप जल्दी आ गए, थोड़ी देर रुकिए। तो 2-4-5 मिनट रुकने के बाद जो एल्पिन का बाहर वाला हिस्सा था वो गिर गया नीचे, अंदर का हिस्सा उस प्याज में डिजॉल्व हो गया था।
stainless steel was dissolved in a product which grows in the forest. Can you imagine this? Next time when you go to Pachmadi, ask for a product called Gudmar. Have you heard the word Gudmar? Anybody? Gudmar सुना है किसी ने? गुड़मार एक वनस्पति होती है, उसको आप खा लेंगे तो आपको मीठा लगना बंद हो जाएगा. उसके बाद एक चम्मच शक्कर खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके मुंह में एक चम्मच मिट्टी है, उसका कोई स्वाद ही नहीं आएगा आपको. और उसका एंटीडोट है, वो एंटीडोट एक दूसरी औषधि है, वो दे देंगे तो फिर से मीठा लगना शुरू हो जाएगा. This is, it's not, you don't eat it because you want to test your taste buds, but these are extremely high medicinal property wild products which is part of your indigenous heritage, which we don't realize the importance, but the foreigners would come, the foreign companies, the corporates would exploit them in huge numbers, and the two most infamous industries are the cosmetic industry and the pharmacy, the pharmaceutical industry. इन लोगों ने धड़ल्ले से इस्तेमाल करना शुरू किया, अब बहुत सारा जा रहा था. तो हमने पहली बार ये तय किया कि पहले तो हम डॉक्यूमेंट करेंगे. तो पीबीआर्स में ये जो हमारा एक तो प्रोडक्ट जा रहा था और दूसरी जो बात जा रही थी वो और भी ज्यादा गंभीर थी, जो था हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज. हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज भी बाहर चुपचाप से लेके जा रहे थे और हमको नहीं बता रहे थे कि इसमें क्या है. इसीलिए रिसर्च को भी इसमें कवर किया गया बायोडायवर्सिटी एक्ट में कि प्रोडक्ट तो नहीं ले जाओगे बाहर, हमारी रिसर्च को भी बाहर नहीं ले जाओगे, उसकी ओरिजिनलिटी को अपना नहीं बताओगे बाहर ले जाके. आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने भी आईपी यानी पेटेंट्स होते हैं, जानते हैं ना पेटेंट समझते हैं क्या होता है? आपको मालूम है बासमती राइस का पेटेंट किसने फाइल किया था? अपन सब खाते रहते हैं. बासमती राइस का पेटेंट फाइल किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कि ये हमारा प्रोडक्ट है. क्यों? हमारे यहां से ले गए और अपने यहां उगा के उन्होंने पहले फाइल कर दिया. डॉक्यूमेंटेशन उनका तेज था, हम लोग पीछे रह गए थे. तो उन्होंने बासमती, वो तो इंडिया ने कंटेस्ट किया कि तुम क्या बासमती राइस, जब तुम जंगलों में बिना कपड़े घूमते थे तब से हम बासमती राइस खा रहे हैं, तो अमेरिका की क्या है. तो बड़ा लीगल कंटेस्ट रहा और उसके बाद हम लोग कानून में मुकदमा लड़ने के बाद जीते. नीम ऑयल का पेटेंट ब्रिटेन ने फाइल किया. क्यों? they were able to document everything, so they documented and they started staking their claims. United States also filed for neem oil. These are surprising things. Why? Because we were poor, so we decided we are going to document everything and we will have an act, and that act will mandate कि सारा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है. तो एक पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा पार्ट है प्रिजर्वेशन, कि हम अपने यहां से बिना अनुमति बाहर नहीं निकलने देंगे, हम उस पर अंकुश लगाएंगे हमारा प्रोडक्ट और हमारा नॉलेज अगर बाहर जा रहा है तो. ठीक. सो सेकंड पार्ट इज प्रिजर्वेशन. द थर्ड पार्ट इज प्लाउ बैक ऑफ द बेनिफिट्स दैट दीज कंपनीज टेक टू द लोकल कम्युनिटीज. यानी अमरकंटक से, पचमढ़ी से, आपके घर, आपके आसपास के जंगल से यदि कोई बायोडाइवर्सिटी, बायो रिसोर्स को लेकर जाएगा, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करेगा, तो पहले तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी. ये डिसाइड होगा कि कितना ले जा सकता है और वो लेके जाएगा तो उसको एक फी लगेगी. सेक्शन 41, 42 देखिएगा आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट का, कभी आपके पास अगर लगे, नहीं तो हम बताएंगे आपको आगे चल के कि क्या होता है. तो उस पर एक कंजर्वेशन फी लगेगी, वो फी आपको पे करनी पड़ेगी एंड दैट बेनिफिट विल गो टू द लोकल कम्युनिटी. तो 3 वे अप्रोच था बायोडाइवर्सिटी एक्ट का. सबसे पहले डॉक्यूमेंट करना है, सारा लिख लेना है कितनी बायोडाइवर्सिटी है. नंबर 2 उसको प्रिजर्व करना है, यानी उसके निकालने, एक्सप्लॉयटेशन पर, उसकी रिसर्च पर परमिशंस की रिजीम लगानी है, बिना परमिशन नहीं कर सकते हो. और थर्डली is to give back the benefit of those resources to the local communities, and then things will grow. Right? You will be intrigued to know that when you next time travel to Amarkantak,
एक पाटनगढ़ नाम का एक गांव पड़ता है डिंडोरी के बाद, पाटनगढ़, ठीक है, वहां रुकिएगा थोड़ी देर, मेरी सलाह है कि उस पाटनगढ़ में रुकना। पाटनगढ़ में गोंड पेंटिंग्स का गढ़ है, वहां के लोग खेती बाड़ी कम करते हैं, वो गोंड पेंटिंग्स बनाते हैं। तो गोंड पेंटिंग जो है वो वहां का ट्रेडिशनल आर्ट है। एक एक फैमिली एक एक पेंटिंग को एक एक महीने में तैयार करती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग्स रहती हैं वो, उसको 5,000-6,000 रुपए में खरीद के ले जाते थे लोग बाग, ट्रेडर्स। दिल्ली में वो बिकती थी 60,000 से 1,00,000 रुपए की, और जब वो विदेश चली जाती थी तो वो 50 लाख 60 लाख की बिकती थी। वो खरीदी गई है 6,000 रुपए में, जिसने बनाया है उसको 6,000 रुपए मिल रहा है, और बाजार में बिक रही है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो 50 से 60 लाख रुपए की। This disparity is sought to be removed, no, although paintings are not covered by the Biodiversity Act, but the government stepped in this also, and the Madhya Pradesh Tourism Board took up the initiative. उन्होंने अपने ऑफिस में ये एक प्रोजेक्ट लाया और अपने ऑफिस में इसको मार्केट करना शुरू किया, वहाँ के लोगों को बताना शुरू किया कि भाई ये इतनी सस्ती नहीं है, ऐसे मत बेचा करो, हम तुमको जो एक्चुअल प्राइस है उसका सब्सटेंशियल कीमत तुमको दिलाने शुरू करेंगे। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि वहां के बच्चे जो गांव छोड़ छोड़कर खेती किसानी में लग गए थे या शहर में कंस्ट्रक्शन लेबर में आ गए थे, वो वापस जाके पेंटिंग बनाने लग गए, क्योंकि वहां से उनको आमदनी मिलने लगी। एक डाइंग आर्ट को हमने रिवाइव कर दिया एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, जिसमें हमने उनको एक्चुअल बेनिफिट देना शुरू किया। एक आर्ट जो मर जाता हमेशा के लिए, उसको हमने जीवित जागृत कर दिया। बायोडाइवर्सिटी के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब आप उसको कंजर्व करेंगे और उससे निकलने वाले बेनिफिट को आप लोकल कम्युनिटी को देंगे, तो वहां का जो गांव में जंगल में रहने वाला आदमी है वो शहर में आकर काम करने को मजबूर नहीं होगा। वो अपने जंगल में रह के अपनी आजीविका चला सकेगा और उस क्षेत्र का संरक्षण करेगा, उसको कंजर्व करेगा, क्योंकि उसी से उसकी आजीविका चल रही। आप समझ रहे हैं कैसे चेन वर्क होती है कंजर्वेशन की, कि केवल पैसा मिलने से आप सोचो कि कंजर्वेशन कैसे होगा, सीधे नहीं दिखाई देता है। The moment you go deeper into it, then you start understanding how these small little things have such a major impact on conservation. So 3 things this Biodiversity Act does. First is it documents, 2 it preserves, number 3 it gives back to the local communities the financial resources which are being earned out of exploitation of or use of or extraction of the biodiversity or the bioresources, right? It stops biopiracy. This is what biopiracy is all about. It is stealing your indigenous wealth and taking it away to foreign countries and selling it off. Who profits from biopiracy? Who profits from biopiracy? देखो तो फोटो ही लगी हुई है सामने, कौन प्रॉफिट कर रहा है बायोपायरेसी से? Those traders, those businessmen who have earned a lot, they are the ones who profit from biopiracy. ठीक है कि नहीं? और जो लोकल वर्कर है उसको क्या मिलता है? वो जंगल गया, उसने ढूंढ के निकाला, उसको उसके डेली वेज मिल जाएगी 400-450 रुपए पर डे की, और जो उससे लेके आया उसको तो मालूम नहीं उसकी कीमत क्या है, तो वो करोड़ों रुपए में बिकेगा बाजार में और उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, इस बायोपायरेसी को हम रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट लेकर आए हैं। जस्ट यू कैन नोट डाउन, आई विल शेयर द पीपीटी लेटर ऑन विथ यू, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स, राइट? These are the 3 dimensions that I was talking to you about: documentation, preservation, and inclusive revenue sharing. Inclusive, right? Inclusive means include the people into conservation, make them work, make the standing tree more valuable than the cut down timber. Only then you will be able to save the forest. जब तक खड़े पेड़ की कीमत कटे हुए पेड़ से कम रहेगी तो पेड़ कटता रहेगा। आपको खड़े हुए पेड़ की कीमत बढ़ा देनी है। बायोडाइवर्सिटी उसको समझाना है
कि ये साल का पेड़ है, इसमें से जो साल का सीड गिरता है। कान्हा कोई गया है कान्हा समर्स में? कौन गया है बताइए? कोई नहीं गया? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्तिका, यू बीन टू कान्हा? Did you notice a helicopter shaped seed falling down from the trees? Yes, sir. Have you noticed that? Yes, sir. Good. So the helicopter shaped seed is the sal seed, which produces an oil called the sal oil, which is one of the major ingredients in the soap making industry. तो ये इनको हम NPF कहते हैं, ठीक है कि नहीं? ये बताएंगे हम, ये सब ज्यादा हम टेक्निकल टर्म्स आपके सामने यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये ऐसे ये सारे प्रोड्यूसर्स रहते हैं जो जंगल से तो निकलते हैं लेकिन ये जंगल का नुकसान नहीं, यानी टिम्बर नॉन टिम्बर है, यानी लकड़ी से नहीं निकल रहा है। ये हनी हमारे यहाँ का निकलता है। हनी तो इतना विध्वंसक हो गया है आज तक, जितनी मधुमक्खी भारत में नहीं है उतना किलो तो हनी निकल रहा है हमारे यहाँ से। कैसे निकल रहा होगा इतना हनी? ऑल आर्टिफिशियल, ऑल इंडस्ट्री मेड। Whoever claims this is genuine honey, except for the villager who breaks the extracted directly from the honeycomb, everything else that you get in bottle is manipulated. Almost everything. You will be surprised to know. Anyways, what is more important is these are the three pronged approaches. तो ये जितना भी प्रोडक्ट निकलता है वो सारा एक मेथड से उसके बेनिफिट को लोकल कम्युनिटीज को देते हुए हम यूज करें, इसलिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया है, ठीक है। नाउ यू सी व्हाट आर द फर्दर डायमेंशंस ऑफ दिस एक्ट, दैट इज यूसेज ऑफ बायो रिसोर्सेज, obtaining of biological material, source material for whatever purposes, commercial utilization, each use such as drugs, cosmetics, extract, essential oils, flavors, dyes, fragrances and food additives, everything is controlled by this act. I'll tell you how. Then research on biodiversity, study of the genetic or biomechanical biochemical composition as a resource and transfer of research results abroad. यानी हमारे यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी पर जो रिसर्च भी होगी वो बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकती, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारी, क्योंकि हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उस पर अगर आप रिसर्च करेंगे तो पहले आप परमिशन लेंगे, परमिशन लेकर रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करेंगे। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर कर रहे हैं तो आपको परमिशन मिल जाएगी, अन्यथा आपके ऊपर वो फीस इम्पोज होगी जो अगर आप रिसर्च, और उसके साथ कंडीशन लगेगी कि इसको बाहर ले जाके इसको पेटेंट मत करवा लेना क्योंकि ये हमारा है। पता लगा आप भी बासमती अपना बताने लग गए जाके बाहर, ठीक है। तो उन सब को रोकने के लिए ऐसा होता है। बायो यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस रिसोर्सेज अगेंस्ट बायो सर्वे, कैरेक्टराइजेशन, नाम देना, आइडेंटिफाई करना, उसमें वैल्यू एडिशन यानी उसका फॉर्म चेंज करके उसका वैल्यू एडिशन कर देना, हमारे इंडिजिनियस नॉलेज को कैटलॉग करना, रजिस्टर करना, ये सब इसमें कवर होता है। देन ग्रांट ऑफ आईपी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विच इज पेटेंट एंड ऑल, filing of IPRs. If you become a lawyer later on and work on IP, you will know this field better. We don't want to go too much into it. So these are further dimensions which this act regulates. This is the structure that we were talking about. 3 tier का गवर्नेंस है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो आप हैं वो भारत में एक है, उसके नीचे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, उसके नीचे BMC है यानी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। अब एज ए ट्रेडर आप बाहर से आए और आपने कहा कि मुझे सफेद मूसली निकालना है। सफेद मूसली नाम सुना है? अश्वगंधा नाम सुना है आपने? ये तो सुना होगा, अश्वगंधा सुना होगा। अश्वगंधा जो है वो हमारे जंगल का एक प्रोड्यूस है और चाइनीज जिनसेंग के टक्कर का है वो। चाइनीज में जिनसेंग, अगली बार आप कोई ये इस प्रकार की मेडिसिन देखेंगे जो रेकमेंड होती है कि 50 इयर्स के ऊपर लोगों को लेना चाहिए, मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं और ये वो दुनिया भर की चीज़ें,
उनमें ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रिसोर्स होता है जिसको अश्वगंधा कहते हैं। वो वैसे भी बहुत पॉपुलर हो चला है आजकल। तो अगर वो कंपनी आती है विदेश से, कहती है कि हमको अश्वगंधा निकालना है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में कहीं किसी क्षेत्र से, तो उसको क्या करना पड़ेगा ताकि हम उसको रेगुलेट कर सकें। उसमें भारतीय कंपनी है कि विदेशी कंपनी है, इस पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इंडियन कंपनी होगी तो उसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को केवल इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ये करने जा रहे हैं। परमिशन स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तो लगेगी ही। अगर फॉरेन कंपनी है तो उसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी की परमिशन भी लगेगी और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की भी परमिशन लगेगी, नहीं तो उसको नहीं। क्यों? ऐसा रेगुलेशन मैकेनिज्म इसलिए है कि विदेशियों से खतरा ज्यादा है कि हमारे यहां से ले जाएंगे और हमारा नुकसान कर देंगे ज्यादा। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो कि लोकल लेवल की कमेटी है, वो रेगुलेट करेगी कि वो परमिशन के हिसाब से ही निकाल रहा है कि उससे ज्यादा निकाल ले रहा है, क्योंकि ये माइक्रो लेवल की रेगुलेटरी सुपरवाइजरी बॉडी है। आर यू फॉलोइंग? सो परमिशंस फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंटर and on-field management, on-field control of the biodiversity management committee, which will depute its people to see how much you are taking. They will issue the final permit. They will have a regulation. They will audit कि आप कितना लेकर जा रहे हैं। ये 3-tier गवर्नेंस है हमारे एक्ट का। बहुत टेक्निकलिटी में ना ले जाते हुए आपको बस इतना ही बता रहे हैं कि इंडियन एंटिटीज को प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है और फॉरेन एंटिटीज को जो हमारे बाहर विदेश से हैं उनको सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, तभी वो निकाल सकते हैं। अब ये फॉरेन एंटिटी की डेफिनेशन भी बहुत बदमाशी वाली चीज़ है ये, क्योंकि जब ये आया था तो कुछ उत्पाती जीवों ने क्या किया कि इंडिया में कंपनी बना ली, लेकिन मालिक सब चाइना के, और एक तो इंडियन को रख लिया साथ में और इंडिया में कंपनी रजिस्टर हो गई। तो फिर से एक अमेंडमेंट आया, अभी जो 2018 वाला अमेंडमेंट है, उसने रीडिफाइन कर दिया बायोडाइवर्सिटी एक्ट में कि फॉरेन एंटिटी वो एंटिटी होगी जो या तो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड हो या भारत में रजिस्टर्ड हो किंतु उसका कंट्रोल किसी फॉरेन एंटिटी के हाथ में हो, तो भी हम उसको फॉरेन एंटिटी मानेंगे। यानी यदि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स फॉरेन हो तो भी वो फॉरेन एंटिटी होगी, भले ही उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में कंपनी के रूप में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हुआ हो तब भी। ठीक है। तो इसको रीडिफाइन कर दिया गया कि ऐसी सारी एंटिटीज को, एंटिटीज मींस कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, व्हाटएवर इट इज, एनी लीगल एंटिटी विल बी कॉल्ड अ एंटिटी। राइट। नाउ वी कम टू योर मेजर सब्जेक्ट मैटर विच इज द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। इसके पहले जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात या कोई भी कैटलॉगिंग की बात करते थे तो सरकारी तंत्र ही कैटलॉगिंग करता था। यानी आपको मालूम है रेवेन्यू में हायरार्की क्या होती है? सबसे छोटा होता है पटवारी, पटवारी के ऊपर आरएसआई रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये पूरी एक हायरार्की होती है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी काम होना है तो इस पैटर्न से होगा। फॉरेस्ट का काम होना है तो उसके सबसे नीचे वाला फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर फॉरेस्टर, फॉरेस्टर के ऊपर डेप्यूटी रेंजर, रेंज ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, ये हायरार्कीज हैं अपनी, कोई भी काम होना है। लेकिन पहली बार बायोडाइवर्सिटी एक्ट ने ये कहा कि जब बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनेगा तो बनाएगी तो बीएमसी यानी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, पर उसमें से इनपुट जो लेगी जिसके आधार पर बनेगा, those will be the local people. Who will be the local people? Those who have the traditional knowledge. है कि नहीं? बाहर से कोई आदमी ट्रांसफर होके आया, वो क्या बताएगा कि इस जगह की बायोडाइवर्सिटी क्या है? और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जनरेशन से पास ऑन होता आया है। वनस्पति के बारे में, जीवों के बारे में हमारे पूरे फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक बहुत कमी रही है और अब उस कमी को महसूस किया जा रहा है। When I talk to some of the officers, they have started realizing that we need to change this.
we still do not involve the locals in our policy making, in taking their inputs. And I give you one example. There was a field director in Kanha Tiger Reserve, Dr. Rajesh Gopal, who currently is the head of the United Nations Tiger Body and international tourism and all that. He was field director of Kanha. तो एक बार कान्हा में वो फील्ड सर्वे कर रहे थे, डायरेक्टर साहब खुद, उनके साथ उनका स्टाफ था। स्टाफ में एक बहुत छोटा सा कर्मचारी था जिसका नाम था मंगलू बैगा। आपको मालूम है बैगा कम्युनिटी जो है वो मंडला और डिंडोरी और इन क्षेत्रों की एबोरिजिनल ट्राइब है, और इन लोगों के पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होता। पृथ्वी पर अगर मैं किसी को टाइगर एक्सपर्ट मानता हूँ, मेरी समझ थोड़ी कम है इसमें हालांकि, तो मैं मंगलू बैगा को टाइगर एक्सपर्ट मानता हूँ। बाकी सब फर्जी हैं क्योंकि यहाँ वहां से पढ़ के आए हुए हैं। जमीन से अगर किसी ने बाघ को जाना है, मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि वो आदमी जमीन को सूंघ के बता देता था कि बाघ निकला है कि नहीं निकला है। आई हैव सीन दैट। ही कुड स्मेल द ग्राउंड एंड टेल यू whether the tiger has gone or not from that path. That traditional knowledge these people had. So field director Rajesh Gopal was on a trip. He was surveying an area of Kanha, and suddenly he hears a sound which is very peculiar. In all his life in the forest and as an IFS officer, he has never seen any such. Getting कौशल जी, आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है प्लीज। कौशल जी, Sorry. not at all, please, not at all. तो उन्होंने Actually, sir, I am hearing you. I'm traveling also. अरे डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट नो दैट यू आर देयर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो क्या Sorry, हुआ कि, हाँ प्लीज प्लीज। सो क्या हुआ कि एक बड़ी विचित्र सी आवाज आई, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, किस जानवर की आवाज है, हमने इतने सालों में आज तक नहीं सुनी। तो जो मंगलू बैगा थे वो बोले साहब ये बाघ की आवाज है, टाइगर की आवाज। तो उन्होंने कहा मंगलू तुम बुढ़े हो गए जंगल में, तुमने इतनी बार टाइगर की आवाज सुनी होगी, तुमको ये टाइगर की आवाज लग रही है? तो बोले साहब टाइगर की आवाज है, बाघ की आवाज है, और इसको पेट में तकलीफ है इसलिए ऐसा बोल रहा है, और अब ये यहाँ से जाएगा और फलाने मैदान में बड़ी घास के किनारे बड़ के झाड़ के नीचे ये कोई जड़ी होती है वो खाएगा, तब इसका पेट ठीक होगा जाके, तब इसको पॉटी होगी और पेट ठीक होगा इसका। तो उनने ढूंढा तो वास्तव में टाइगर मिला और वो आवाज वही टाइगर कर रहा था। देन दे फॉलोड द टाइगर वॉक फॉर 6 kilometers टू दैट ग्रासलैंड, went to that tree, and under that tree he ate that particular wheat which he was talking about, and they waited to see, and then he defecated, and then he became normal. This is what you call real knowledge, which is not catalogued, unfortunately, still. Therefore it is important to catalog this, right? So whom do you ask about biodiversity? अब आप जंगल में जाओगे तो बैगाओं से, गोंड, इन्हीं से तरह पूछोगे आप। तो इसलिए बीएमसी की जिम्मेदारी है कि वो विलेज एल्डर्स, ओल्ड पीपल, दोज हु हैव लिव्ड देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, जिनको रिलोकेट किया है, उनसे जानकारी लेकर आप पूरी बायोडाइवर्सिटी लिखोगे। कौन सा पेड़, कितने प्रकार का पेड़ होता है, उसका क्या फायदा है, वो सब लिखोगे। और वो फायदे ऐसे ऐसे होते हैं। आपने अगर कभी घर में देखा होगा, दही को मथा जाता है, देखा है ना सबने? वो एक विशेष लकड़ी से उसकी मथानी बनती है, विशेष लकड़ी होती है उसकी, उसको कहते हैं दहीमन। उस पेड़ का नाम है दहीमन, लिख लीजिए, पढ़िएगा, दहीमन। उसकी विशेषता होती है कि ह्यूमन कांटेक्ट में आके या किसी भी पदार्थ में संपर्क में आके उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करती है। अब ये ट्रेडिशनल नॉलेज है और ये कैटलॉग नहीं है, वेरीफाई होना संभवतः बाकी होगा, लेकिन हमने फॉरेस्ट गार्ड से खुद सुना है कि जब बाघ पीछा करता है टाइगर, हिरण का, तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, सब दौड़ते भागते हैं एकदम अपनी जान बचाने के लिए। तो रेस्ट करने के लिए दहीमन का पेड़ ढूंढते हैं, उसकी छाए में बैठते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर जल्दी से नॉर्मलाइज हो जाता है।
दहीमन का पेड़ ढूंढते हैं अगर मिल जाए तो। ये लैक ऑफ कैटलॉगिंग के कारण ये प्रॉब्लम है कि इन सब पे रिसर्च, क्योंकि कैटलॉगिंग नहीं होगी तो रिसर्च नहीं होगी। रिसर्च तभी होगी जब कैटलॉगिंग होना जरूरी है, राइट? So that is why it is so important to catalog these things. And in cataloging, this is the first effort, which is an inclusive effort, जब ट्रेडिशनल इंडिजिनस नॉलेज को आप निकाल के कैटलॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो रजिस्टर बनेगा इसलिए उसका नाम पड़ा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। व्हाई? बिकॉज इट इज फेड विथ इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम द पीपल। ठीक, ये फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट रहेगा जिससे तय होगा कि कब किसको परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। इसमें ही मेंशन्ड रिसोर्स अगर आपको निकालना है तो ही निकाल सकते हैं आप वहां से। उसकी परमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। जब परमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको कमिट करना पड़ेगा कि इतना पैसा हम सरकार को देंगे, सरकार फिर उसको बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोकल कम्युनिटीज को, बीएमसीज को देगी, लोकल कम्युनिटीज को देगी, जिससे लोकल कम्युनिटीज के एसेट्स बन सके, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हो सके, उनको उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, क्यों नहीं बनते पीपल्स? क्योंकि आपके टॉपिक में क्वेश्चन भी है, क्यों नहीं बनते भैया पीपल्स बायो? अगर इतना अच्छा मैकेनिज्म है तो आज तक क्यों नहीं फोर्स में आ गया? कोई बताएगा हमको तो हम सुनना चाहेंगे कि क्यों नहीं फोर्स में आया होगा। इतनी सुंदर मैकेनिज्म, इतना रोबस्ट सिस्टम, कानून में इतना तगड़ा, लेकिन आज तक जमीन पर क्यों नहीं उतर पाया जैसा चाहते हैं हम? वैसे बताइए, आई वुड वांट टू हियर यू। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर नॉन प्रिपरेशन ऑफ और नॉन कैटलॉगिंग स्टिल 2002 2026 24 इयर्स? बताइए। Maybe because it is not updated periodically. अरे पहले बनेगा तब तो अपडेट करेंगे। अपन तो बात कर रहे हैं कि वो चुनौती है कि ये आपके कारण, सामने कारण, 3 कारण लिखे हुए हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, सबको लगता है फालतू का काम है, क्या ये सब करते रहेंगे, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर और ये वो, लकड़ी बचा नहीं पा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कैसे बचाएंगे। दूसरा, हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उतना स्टाफ ही नहीं है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, बाकी बॉडीज के पास इतना स्टाफ नहीं है। और एक तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव बायस। ये मैंने महसूस किया है एडमिनिस्ट्रेटिव बायस, उसका भी एक उदाहरण बताता हूँ। I am doing a matter in the High Court which involves uprooting of a particular tree called baobab tree. Just note down baobab. You can research upon it later. B-A-O-B-A-B, baobab. अगर आप इंदौर से मांडू गए हैं, मांडू तो आप जानते हैं ना, मध्य प्रदेश की एक बड़ी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। मांडू में ये बहुत बड़ी संख्या में बाओबैब ट्री रास्ते में आसपास, ह्यूज ट्रंक, इतनी बड़ी ट्रंक जितनी 4-5 पेड़ों की मिला के एक होती है, उतनी बड़ी ट्रंक होती है उसकी, बाओबैब ट्री की। हमारे यहाँ का नहीं है, नेटिव अफ्रीका से भारत कभी लाया गया 700-800 साल पहले। तो उसको कोई ट्रेडर जो है वो अपरूट करके यहाँ से ले जा रहा था चुपचाप। हाई कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेकर प्रकरण उसका रजिस्टर किया, सो मोटो PIL, एंड आई वाज असाइन्ड द ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट in getting to the case to the logical conclusion. So I did my own research and I came to the conclusion कि धार डिस्ट्रिक्ट जहां से ये निकला था वहां का पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर ही नहीं बना हुआ है। तो जब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बना ही नहीं है तो उसमें वो पेड़ का नाम भी लिखा नहीं है। नहीं लिखा तो वो ट्रेडर आया, उसने लोकल फार्मर से बात की, उसने बोला उखाड़ लो, तो वो अपनी मशीन लाया, क्रेन वैन से उखाड़ के गाड़ी में लोड करके ले गया। उसको 2-5 हजार रुपए जो देना था उसको तो वैसे ही लगता था कि कोई काम का पेड़ है नहीं, इसके नीचे हमारी खेती हो नहीं पाती, तो वो दे दिया उसने। और वो पिलफरेज चल रही थी, हमारे यहाँ से बाहर जा रहा था। So I talked to the officers concerned there. The collector informs that अभी हमारे यहाँ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तो बना ही नहीं है साहब। So I made a request to the court कि साहब ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पता चला कि हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज ही नहीं बनी है पूरे मध्य प्रदेश में, तो बनाएगा कौन रजिस्टर?
तो रजिस्टर एक जगह, फिर ये पता चला पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं बना है। ये हम बात कर रहे हैं 2023 की। एक्ट कब आ गया था? 2002 में। 2002 से 21 ईयर्स लेटर हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाना उसके बाद शुरू होता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। तो वो बॉडी ही नहीं बनी, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जल्दी करो। स्टेट को बड़ी फटकार लगाई कि ये क्या तमाशा चल रहा है तुम्हारे यहाँ, जो है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनाई तुमने। उनने बोला साहब 1 हफ्ते में बना के लाते हैं। देखिए तो आप क्या किया उन्होंने। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 5 पार्षदों को पकड़ा और उनको बोला आज से तुम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ग्राम पंचायत में 4 पंचों को पकड़ के बोला आज से आप जो है वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो उन्होंने 10,000 बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी 1 हफ्ते में बना के हाईकोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी, बन गई सब। अब उसमें कौन है? पार्षद लोग क्या जाने बायोडाइवर्सिटी के बारे में? सरपंच और ग्राम पंचायत के पंच लोग जो कि चुनाव लड़के आए हैं वो क्या जाने इसके बारे में? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बायस है हमारा कि हम या तो काम करना नहीं चाहते, करते हैं तो हम उस बैल के जैसे हैं, या तो वो चले ही नहीं, और चले तो फिर हली तोड़ के फेंक दे। ऐसे वाले बैल हैं हम लोग कि हम पूरी व्यवस्था को विध्वंस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बायस है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, या करेंगे तो हम अपने तरीके से करेंगे, तो होगा ही नहीं। उसके कारण इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इस बहुत महत्वपूर्ण एक्ट का नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको पढ़ना है इसके बारे में कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स ने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बना ली है, उन्होंने कितने पीबीआर्स बना लिए हैं, इसका डेटा निकालिएगा, ठीक है? नहीं निकाला तो हम अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करें? क्या ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंश्योर करे कि जो एक्ट 2002 में बन गया था उसका इंप्लीमेंटेशन 2021 तक नहीं रहा? तो व्हाई शुड अ फ्यू हेड्स नॉट रोल? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रोलिंग ऑफ हेड्स? कि कुछ सर कटवाने जरूरी हैं, 1-2 मुर्दे मार के टांगने पड़ेंगे, कुछ 2-4 को सजा होनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा, तब तेजी से काम होगा। अब आपको ये सब ढूंढना है और आपके डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में आपको ये रेकमेंड करना है कि ये जल्दी से जल्दी बने और उस रजिस्टर के हिसाब से फिर कार्रवाई आगे चले। सो दिस इज द स्टोरी। डू यू हैव एनीथिंग एल्स? यस, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, दिस इज द चेंज इन द सिनेरियो कि पहले जो है वो थोड़ा बहुत पैसा मिला करता था। अब जब इम्प्लीमेंटेशन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन धार में सबसे पहले हुआ क्योंकि हाईकोर्ट का जो वज्र था वो सबसे पहले वहीं गिरा, क्योंकि वहीं से बाओबैब ट्री की पिल्फरेज शुरू हुई थी। अब नाउ लोकल पीपल आर नाउ स्टार्टेड गेटिंग दी बेनिफिट, बट वेरी फ्यू, हार्डली 1% इन द स्टेट। So medicinal plants, native seeds, sacred groves should all be catalogued, everything should be registered, everything should be documented, and then the implementation of the act would be effective. This is the whole story of it. If you have any questions to ask, I'll be happy to answer. It's a subject which is slightly technical. I have tried to simplify, but I am sure you don't need much simplification. You are all capable children who will understand it and research and take it forward. अब आप सोचिए कि जितना आपका ये एक केस लिख लीजिए, ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, नेट से निकाल के उसकी समरी। दिव्य फार्मेसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिव्य फार्मेसी किसकी है जानते हैं ना? अपने बाबा जी की है, रामदेव जी की। इनका झगड़ा हो गया था भारत सरकार से, क्योंकि स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने इनके ऊपर वो लगा दिया था कि आप रिसोर्स निकाल रहे हैं तो आपको पैसा बीएमसी को देना पड़ेगा। उसको लेकर बड़ा झगड़ा हुआ कि स्टेट का पावर कितना है, कितनी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कितना पावर रखता है कि उनसे। So anyway, just study about that. तो जितना आप ये आज कॉस्मेटिक देख रहे हैं जो क्लेम करता है हर्बल, है ना, जितना भी आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, डाबर के देख रहे हैं, बैद्यनाथ के देख रहे हैं, जिसके भी देख रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि हर्बल है या मेडिसिनल है या आयुर्वेद से निकल के आ रहा है,
ये सब आपके इस एक्ट से गवर्न होते हैं और इन सब को आपकी अनुमति लगती है, यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की परमिशन से ही होता है। और परमिशन देते समय आप उन पे कंडीशंस लगाते हैं कि इतना पैसा आपको लोकल कम्युनिटी को देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है आपकी कमिटी की। पूरी दुनिया के केंद्र बिंदु हैं, आप चला रहे हैं सब कुछ, सारी व्यवस्था, तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना पड़ेगा। ठीक, एनी क्वेश्चंस प्लीज? Sir, why is the government not serious about making committees? Like you gave the MP example, राइट, like people were just compiled and for a name they showed that there is a committee. एक कहावत है अपने यहाँ, भय बिन होत न प्रीत। जब तक भय नहीं रहेगा तब तक काम नहीं करता कोई। तो दो भय हैं, न्यायालय का भय और पब्लिक का भय। न्यायालय ने जब बोला तो थोड़ा काम शुरू हुआ, हम और आप इन्वॉल्व नहीं होते बेटा, इसीलिए गवर्नमेंट जो है जो चाहे वो करती है। हम और आप जब इन्वॉल्व होंगे, और अब जब छात्र पर्यावरण संसद में आप ये सब पढ़ेंगे तब आपको मालूम हुआ कि ऐसी चीजें होती नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा आपको? अब जब मालूम होगा तो आप सवाल पूछेंगे, जब आप सवाल पूछेंगे तब फिर सरकार काम करेगी, क्योंकि जिसका सवाल ना पूछा जाए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सो दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट because we've seen three reasons: lack of infrastructure, lack of initiative, administrative bias, but also because there is no accountability. There should be accountability. Somebody should ask the question कि क्यों नहीं किया अभी तक ये काम। जब आप पूछेंगे तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है ना? Any other question? Sir, good evening. जी डॉक्टर साहब प्लीज। गुड इवनिंग। सर, मैं इस पे कुछ और भी बताना चाह रहा था। बहुत अच्छा, जरूर बताइए। मैं आई इंट्रोड्यूस डॉक्टर कौशल No, त्रिपाठी। Sir, I am only a student. अरे नहीं, he is a scientist in the Tropical Forest Research Institute, right? An acclaimed scientist with a lot of work in various sectors. Please डॉक्टर साहब पूछिए। सर एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत होगी, मेरी वॉइस जा रही होगी नहीं, मैं ड्राइव कर रहा था। कोई नहीं। तो पहले तो ये सुन रहा था, आपको बड़ा अच्छा लगा, और उसमें पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में जो बात कर रहे थे, तो जो एक्ट है, जो जिस बच्चे ने अभी पूछा कि सर इतना होने के बाद गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है, बेसिक क्वेश्चन ये था जी। तो आप जुडिशरी सिस्टम से हैं, तो कोई कोई एक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पावर नहीं देते, लेकिन जरूरत बहुत रहती है उसकी। तो उस एक्ट के तहत 2002 में हर स्टेट को बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाने का जिम्मेदारी मिला। तो एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में है, हर स्टेट की बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। उस बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को देख रहा है कि पब्लिक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कैसे बनाई जाए। मेन समस्या हुई कैसे कि जो रजिस्टर बनाने वाले लोग थे उसमें पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिनको नॉमेनक्लेचर नहीं पता था, स्पीसीज का नाम नहीं पता था। और एक बेसिक समस्या भारत में है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है लोग बताना नहीं चाहते। तो ये एक बड़ा इशू आया। तो वहां पे एक बहुत बड़ा स्कोप डेवलप हुआ। जैसे आज हम लोग अपने छात्र पर्यावरण संसद में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा स्कोप हम डेवलप कर रहे हैं कि जो एनजीओज हैं उन्होंने टेकअप किया इसे, और हर एक ग्राम पंचायत पे, मैं मध्य प्रदेश के बारे में तो बहुत नहीं डेप्थ में बता पाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के 36 जो टोटल 54 डिविजन्स हैं वहां से बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बन चुका है। और उसमें एनजीओ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसमें कई में मैं कमेटी में था। और उस कमेटी में कमियां तो बहुत थी, लेकिन इनिशिएट हो गया, ये बड़ी बात थी। तो जो अच्छाई है मैं पहले उस पर चर्चा कर लेता हूं। तो जो ग्राम पंचायत लेवल पे इंफॉर्मेशन आई और उसको जो है सबमिट किया गया, तो एनजीओ के बड़े प्लेयर्स ने 1 लाख रुपए लेकर के एक गांव के रजिस्टर बना के दे दिए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने गांव-गांव से बना करके 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे लेकर के, और कुछ बच्चों को उन्होंने इंगेज किया इसमें, जो बीएससी के थे, इंटर के थे, जिनको थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल नॉलेज थी, और ये सब करके। अब उसके बाद हुआ क्या कि बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बन गया। एक गांव का बनाने में जो मेहनत करना पड़ा सर, उसके बाद दूसरे गांव में मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो
एक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तो हमारे पास छत्तीसगढ़ के सारे डिविजन्स में हर गांव की अवेलेबल है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी Doubtful है। अर्जेंट रिक्वायर्ड, डाउटफुल है। और वो जो है हमारे बच्चे जो इस पर्यावरण संसद में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है कि वो आगे चल करके अगर अपना छोटा सा डिजर्टेशन पार्ट एक गांव पे भी करेंगे तो गवर्नमेंट इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। This may be a career option for you later on. यस सर, Major टोटली career इट इज अ कैरियर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो जो हमारी कमियां है, बट अच्छा ये है कि हमने एक बेस फाउंडेशन बना लिया है। तो अब मध्य प्रदेश के लिए तो स्कोप है ही, और बच्चे इंगेज हैं। और दूसरा ये कि कुछ चीजें आपने बताई, जैसे बाओबाब ट्री, शायद आपका ही वर्डिक्ट था, आपका ही सजेशन था। वो हमारे एक जूनियर है, वो प्रोजेक्ट भी कर रही है बाओबाब पे, और उसका इंफॉर्मेशन ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में कितने ट्री हैं वो काउंट हुए आपके कोर्ट के उसके बाद। पूरे मध्य प्रदेश की इंफॉर्मेशन इस समय अवेलेबल है, अब उस पे और भी रिसर्च का काम चल रहा है। और तीसरा है दहीमन का, जो आपने इन्फॉर्म अभी बच्चों को किया, वो शायद बच्चे कभी हमें नहीं लग रहा है कि देख पाएंगे। हमें इस बात की चिंता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में अकेला व्यक्ति मैं हूं जिस दहीमन पे काम कर रहा हूं। अरे क्या बात, तो मैंने छत्तीसगढ़ के पूरे जंगलों में घूम घूम करके देखा सर, मोर देन 150 ट्री नहीं मिले, और जो मिले उसको दूसरे दिन तीसरे दिन काट दिया जाता है। उसकी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, और एक छोटा सा बता करके मैं बच्चों को इनवाइट भी करूंगा, जैसे ही सांसद का प्रोग्राम कंप्लीट होता है आप लोग हमारे यहाँ विजिट करिए, इन सारे स्पीसीज को मैं दिखाऊंगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, कि ये बच्चे उनको देखें जो आपने इन्फॉर्म किया, उनको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो उसमें सर क्या होता है कि जो आपने बताया कि कोई वाइल्ड लाइफ आकर के उसे अपने बॉडी को रब करता है तो उसका वुंड हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। ये बहुत डॉक्यूमेंटेड है। और मैं जब इस पे काम करना शुरू किया सर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में वो बना करता था वर्किंग प्लान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो 1890 के वर्किंग प्लान में, मतलब आज से 100 साल के ऊपर भी, उस वर्किंग प्लान में 1890 में मेंशन था दहीमन के बारे में। उसके बाद सर मेंशन ही नहीं है 2026 तक। यही हमारी कैटलॉगिंग की कमी है ना, बहुत पुअर है कैटलॉगिंग। अब उसमें सर लिखा हुआ था कि ये पौधा टिम्बर के रूप में यूज होता था। अब टिम्बर का मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि उसकी डेंसिटी अच्छी रही होगी। और फिर जो मैंने लोकल जो नॉलेज थी उससे जब कनेक्ट किया तो उसमें पता चला कि जो गोंड ट्राइब थी सर, उसमें वो वुंड हीलिंग में यूज करती थी। तो ब्रिटिशर्स ने इसकी इलीगल फेलिंग कराई पहले, और इसके पेज में जो है, इसके पत्ते में अगर आप कोई लेटर लिख देंगे वो इंटैक्ट वैसे ही पड़ा रहेगा लिख करके। तो वो लेटर के रूप में इसे यूज करते थे बंगाल तक। तो सीता पत्र के नाम से इसे जानते हैं। जो आप लिख देंगे एक ऐसे लकड़ी से भी तो वो पूरा लिख उठता है। तो एक ये हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका वो था, ये जो गोंड और ये ट्राइब्स हैं, इससे कहते हैं कि जो शराब ये लोग फर्मेंटेड करते थे, तो अपने पड़ोसी के घर में इसका डंडा रख देते हैं, तो उसका जो ये लीकर है वो फर्मेंटेड नहीं होता था, मतलब शराब ही नहीं बन पाती थी। तो ट्राइब जो गोंड ट्राइब थी उसके अगल बगल इसकी फेलिंग कर दिया कि हमारा शराब बन जाए, लीकर बन जाए। मतलब उसकी उस लकड़ी की प्रेजेंस अगर आसपास रहे तो फर्मेंटेशन नहीं होगा। हाँ, प्रेजेंस नहीं होगा। और इसको चतुर्भुजगढ़ में, मतलब कटघोरा रीजन में मैं देखा, एक यंग बच्चा था, वो एक्सेस ड्रिंक किया था और उसे अपने कमर में बांध के रखा था। तो जब मैं उस पर सर्च करते करते पहुंचा तो कहा सर पी लेते हैं ज्यादा, इस वजह से हम इसे बांध लेते हैं तो हमें सेंस रहता है। ये सब तो लोगों का कहा हुआ है। मैंने उस पौधे पर कंजर्वेशन पे भी काम किया, और अभी हमारे पास TFRI में 90 से ज्यादा पौधे हमने उसको कंजर्व करके। क्या बात। तो एक ये था। उसके बाद हमारे बच्चों को एक बार आप TFRI विजिट करा दीजिएगा सर, जरूर। दे विल बी एबल टू सी जो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो अब जंगलों में मिलती ही नहीं है, वो एक बार देखिए। जरूर सर। और एक इंसिडेंट हमारे लिए भी नया था जो हम इन्हें बताना चाह रहे थे कि जो पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में आप है, ये जनरेशन बाय जनरेशन जाती है। तो अभी पिछले साल कोई एक एडवोकेट जबलपुर के आए मेरे पास मेरा नाम पूछते हुए। तो वो कहे कि सर मुझे दहीमन की लकड़ी का
वो चाहिए, पार्क चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, मेरे पास है, मैं अरेंज कर दूंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर हमारी बहन को कैंसर हुआ है और उनके लिए रिक्वायर्ड था, किसी ने बताया कि कैंसर में ये यूजफुल है। तो हमने कहा देखिए मैं प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारे पेपर्स मेरे थे, तो हम इस पे क्लेम नहीं करेंगे, बट हेल्प करना चाहेंगे तो आप अपने रिस्क पे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद 3 महीने बाद उनका जो रिप्लाई आया कि सर कीमोथेरेपी जो हमारी 2-2 महीने पे होती थी, अब सर 6-6, 7-7 महीने पे होने लगी है। तो बीइंग साइंटिस्ट हमें इस बात का भरोसा नहीं था, क्योंकि इस पे क्या सच्चाई है बिना रिसर्च का नहीं कह सकते। तो मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की और इस पे एंटी प्रोलिफरेटिव टेस्ट की हमने पहली प्रिलिमिनरी स्टडी कराई, तो उसमें इफेक्टिव तो है सर ये। क्या बात है। और विनकाब्रिस्टिन एक पहली जो कैंसर की दवा है, उसके साथ इसमें मेटल चिलेट बॉन्ड बहुत अच्छे बनते हैं। तो लोगों को ट्रेडिशनली नॉलेज है, कमेंट नहीं कर पाए, लेकिन इस पर्यावरण संसद का हमें लगता है कि सबसे बड़ा उदाहरण ये होगा कि बच्चे इसलिए अवेयर हो जाएंगे, और इसमें आपका भी बड़ा योगदान है, और मैं एक स्टूडेंट की तरह सुन रहा था सारी चीजें। हम सब स्टूडेंट हैं डॉक्टर साहब, हम सब स्टूडेंट हैं और मैं भी सीख रहा हूँ सर। थैंक यू सर मेरे तरफ से। थैंक यू। सो यू सी दिस इज अबाउट वन ट्री। ऐसे कितने पेड़ हैं और किनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है ये हम नहीं जानते, और कब हमारे हाथ से सरक जाएंगे हम नहीं देख पाएंगे। आप जागृत हैं और आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वी आर सो हैप्पी। एनी अदर क्वेश्चन चिल्ड्रन? So should we